बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटब पब्लिशर्स वीडियो सेशन। कैंटब लेक्चर सीरीज़ में आज जिस मजमून को समझने जा रहे हैं हम वो है साइंस, और यह साइंस ग्रेड 6 के लिए है। इन लेक्चर्स को समझने के लिए जिन रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत पेश आएगी उनमें शामिल है साइंस 6 की कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की टेक्स्ट बुक। इसके साथ साथ कुछ होमवर्क दिया जाएगा आपको। इस होमवर्क के लिए और कुछ एक्टिविटीज़ के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पेश आएगी वो है समर पैक ग्रेड 6 के लिए। इसके साथ साथ अगर पेरेंट्स और टीचर किसी किस्म की कुछ रहनुमाई चाहें तो इनके लिए रिसोर्स पैक ग्रेड 6 के लिए एक बहुत ही यूज़फुल साबित होगा। साइंस का समर पैक और रिसोर्स पैक दोनों कैंटब की वेबसाइट पे इजीली सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल है। इन दिस लेक्चर वी आर as we have been studying the chapter 2, which is about sense organs. It's our lecture 2 from this chapter, and the sense organ we are going to discuss is tongue. As we already know that tongue is related to taste. We find that different foods have different tastes. Some are sweet, some are saltish, some are sour, and many others are bitter in taste. How can we detect all these tastes? How is our tongue is able to detect all these tastes? What is the structure of tongue? What are its different parts? All these questions will be answered in this lecture. And through this lecture, the SLO that will be achieved is explain the structure and functions of tongue. So, there are two targets in our lecture, today's lecture. Number one is the structure and other is the function of tongue. We'll find the lesson on our textbook at page 22 under heading Structure and Function of Tongue. In the first part, the structure of tongue has been explained, and in the other part, the functions of tongue has been explained in detail. The remaining portion of the text functions of tongue is on page 23. So let's start our lesson properly. Tongue is the major organ of taste that functions as part of the digestive system. We all know that tongue is the first place where the digestion of food begins. It's a muscular organ. What does it means? Muscular organs mean it does not contain any bone. The movement of tongue is not supported by bone, any part of the skeleton. So it is a muscular organ. Its movements are independent of the bones. In the first two paragraphs of the textbook, we have been told about the structure, its surface, as well as the general anatomy of the tongue. In this third paragraph, we are told about the taste buds present on the tongue. Not only the taste buds, but their specific location on the tongue, which will be discussed with the help of this diagram. So, first of all, we see what's been said in first paragraph. So, first of all, we will read from the textbook and then from the diagrams. It means the tongue is covered with wet pink tissue called mucosa. The rough texture of tongue is due to the presence of tiny bumps called papilla. अभी हम देखेंगे कि mucosa क्या है और papilla क्या है. Thousands of taste buds are present over the surface of the papilla. या ये बात याद रखिए कि taste buds papilla में मौजूद होते हैं. Taste buds are collection of nerve cells that are connected to the brain for taste detection. हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि nerve cells have the ability to detect the change in the environment they are specified for. As the taste buds contains nerve cells that are specified for the taste, so they can detect any change taking place in the taste. Dorsum is the tongue's upper surface, which is very sensitive. It is kept moist by the saliva and is richly supplied with nerves and blood vessels. The tongue is attached to the mouth by a network of tough tissues and mucosa. Frenulum is a small fold of mucosa membrane underside the tongue. In the back of the mouth, the tongue is fixed into the hyoid bone
and the four common tastes are sweet, sour, bitter and salty. अब इस सब पैराग्राफ का मतलब क्या है वो हम देखते हैं। ये आपके सामने एक टंग है, जुबान की तस्वीर है आपके सामने। जुबान की ये जो अपर सरफेस आप देख रहे हैं, जो पिंक कलर की आप देख रहे हैं, जो अपर सरफेस है, जो हमें देखने से फर्स्ट व्यू देती है, वो डॉर्सम है, अपर सरफेस ऑफ टंग। अब ये जो अपर सरफेस है, यानी ये जो हमारी जुबान की सरफेस हमें दिखाई दे रही है, ये डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज से मिलकर बनी है। इन टिश्यूज के टाइप्स क्या हैं ये आप चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ कनेक्टिव टिश्यूज हैं, कुछ स्मूथ टिश्यूज हैं। इसी तरह से टंग जिन टिश्यू से मिलकर बनी है उनमें से एक कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है म्यूकोजा, यानी टंग की ये जो डॉर्सम सरफेस है यानी अपर सरफेस है वो म्यूकोजा टिश्यू से मिलकर बनी है। इस बात को हम यूं भी समझ लेते हैं कि जैसे एक चेयर लकड़ी से मिलकर बनी है, इसी तरह डॉर्सम सरफेस ऑफ द टंग इज मेड अप ऑफ म्यूकोजा टिश्यूज। अब इस सरफेस को यानी डॉर्सम को स्लाइवा ग्लैंड्स के थ्रू वेट रखा जाता है। स्लाइवा आप जानते हैं कि एक सिक्रीशन है जो कि डाइजेशन में हेल्प करती है। इसी तरह आप डॉर्सम की सरफेस, डॉर्सम पे कुछ छोटे छोटे से बम्प्स देख रहे हैं। ये छोटे से आप अपनी टंग पे भी अगर आप इस मिरर में देखें तो ये बम्प्स, टाइनी बम्प्स फील कर सकते हैं। ये टाइनी बम्प्स, इन्हें कहा जाता है पेपिला। अब इनका काम क्या है कि ये फूड को ग्रिप करते हैं, यानी बैरियर्स बनाते हैं फूड को ग्रिप करने के लिए। ग्रिप जैसे ही फूड मुंह में जाती है तो ये उसके लिए एक तरह से फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं। अब ये जो पेपिला हैं ये स्पेसिफाइड भी हैं टेस्ट बर्ड्स के लिए। ये पेपिला पूरी सरफेस पे होते हैं, लेकिन टेस्ट बर्ड्स सिर्फ मखसूस रीजन्स पे ही होते हैं। तो टेस्ट बर्ड्स क्या है? टेस्ट बर्ड्स एक्चुअली एंडिंग्स हैं नर्व सेल्स की, रिसेप्टर्स की। हर पेपिला जो टेस्ट बर्ड से रिलेटेड है उसमें रिसेप्टर या नर्व सेल होगा। अब नर्व सेल्स आर स्पेसिफाइड फॉर द डिटेक्शन ऑफ टेस्ट। Each nerve cell is specific for specific type of taste. अभी हम देखेंगे कि ये इनकी कंस्ट्रक्शन कैसी है पेपिला की। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दूं कि डॉर्सम टंग की अपर सरफेस है। ये अपर सरफेस म्यूकोजा से मिलकर बनी है और डॉर्सम की सरफेस पे पेपिला प्रेजेंट है। पेपिला स्मॉल टाइनी बम्प्स हैं जो टेस्ट बर्ड्स के लिए स्पेसिफिक हैं। इनके दो फंक्शन हैं, एक तो ये फूड को ग्रिप करते हैं और दूसरा फंक्शन ये है कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। अब ये टेस्ट बर्ड्स क्या हैं? टेस्ट बर्ड्स स्पेसिफिक सेल टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, रिसेप्टर सेल्स हैं जो कि नर्व सेल्स जिनमें मौजूद होते हैं, और ये नर्व सेल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, यानी इनमें रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट है इन टेस्ट बर्ड्स में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पेपिला है डिफरेंट प्लेस पे। अगर वैसे तो पेपिला पूरी जुबान पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनमें वो पेपिला जिनमें टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है वो सिर्फ स्पेसिफिक रीजन में ही पाए जाते हैं। अभी जो साइड के रीजन है और एंड का रीजन है और जुबान की जो टिप है, इनमें जो पेपिला होंगे उनमें टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होंगे। अब ये आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने एक टेस्ट बर्ड को हमने जूम करके दिखाया है। अब इस टेस्ट बर्ड्स में कुछ ग्रूव्स होंगी। ग्रूव्स मतलब ये इनमें कुछ डिप्रेशंस आएंगे। इन डिप्रेशंस में नर्व सेल्स प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं कि ये इनमें नर्व फाइबर्स प्रेजेंट हैं और नर्व फाइबर्स आर द एक्सटेंशन ऑफ नर्व सेल्स। ये नर्व सेल्स टेस्ट को, जो भी इनके ऊपर, इस जगह के ऊपर जो भी टेस्ट आएगा जुबान में, उसको डिटेक्ट करेंगे और सिग्नल जनरेट करके इसे ट्रांसफर कर देंगे ब्रेन में। ब्रेन इस टेस्ट को एनालाइज करेगा और आइडेंटिफाई करेगा कि ये क्या चीज़ है, क्या ये सॉल्टिश है, क्या ये स्वीट है, सोर है, या ये बिटर टेस्ट है। सो इस तरह से नर्व सेल्स
पैपिला में मौजूद होते हैं और टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि फ्रेनुलम इज द स्मॉल फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन अंडरसाइड द टंग, और हमने टंग की अटैचमेंट के बारे में भी पढ़ा था कि माउथ में इसका स्ट्रक्चर या इसकी अटैचमेंट कैसे होती है। अब हम इसे डायग्राम के थ्रू देखते हैं। इस पिक्चर में आप देखिए, पिक्चर बी में ये जुबान है। जुबान को अगर नीचे की तरफ से देखेंगे तो आपको एक थिन लेयर ऑफ टिश्यूज मिलेगी। उस थिन लेयर ऑफ टिश्यूज को फ्रेनुलम कहते हैं। इस फ्रेनुलम की मदद से जुबान हमारे माउथ में एडजस्ट होती है और ये फ्रेनुलम इसकी मूवमेंट को भी कंट्रोल करती है। आप खुद भी अपनी जुबान को अगर अंडर साइड से देखेंगे, मिरर में देखेंगे या आप खुद भी टच करेंगे जुबान के थ्रू ही, तो आप इस फ्रेनुलम को फील कर सकते हैं। अब ये एक और व्यू है, ये जुबान है, ये जुबान के मसल्स हैं। ये वो मसल्स हैं जो टंग को सपोर्ट करते हैं इनसाइड द माउथ। क्योंकि जुबान में कोई बोन तो है नहीं, ना कार्टिलेज है। अब ये जो जुबान के मसल्स हैं, ये जो जुबान की एक्सटेंशन है, ये नीचे की तरफ से इस बोन के साथ कनेक्टेड है। आप देख भी रहे हैं इस बोन के साथ। ये बोन हमारे गले में प्रेजेंट होती है, थ्रोट में, और इसका एक स्पेसिफाइड नेम है जिसे हार्ड बोन कहते हैं। हार्ड बोन कहा जाता है। एक और व्यू में देखिए, ये जुबान के मसल्स थे। जुबान के ही मसल्स इस हार्ड बोन के साथ कनेक्टेड है, और गले में आप इसकी लोकेशन देखिए कि ये कैसे प्रेजेंट है। सो ये जो हार्ड बोन है, इस बोन ने जुबान को एक्चुअली सपोर्ट किया हुआ है इनसाइड आवर माउथ, लेकिन ये बोन इसकी मूवमेंट को डिस्टर्ब नहीं करती है, जैसे उसे सपोर्ट करती है, उसको एक पिलर का काम करती है इनसाइड द माउथ। अब हम आते हैं टेस्ट बर्ड्स की तरफ। जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जुबान में 4 डिफरेंट तरह के टेस्ट प्रेजेंट्स हैं, स्वीट, सोर, बिटर एंड सॉल्टी। अब अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो जो जुबान की टिप है, यहाँ पे आप स्वीट टेस्ट फील कर सकते हैं। जुबान की टिप इज स्पेसिफाइड फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्वीट टेस्ट। स्वीट के साथ द सोर टेस्ट इज फेल्ट बाय द डोर्सल फेस ऑफ द टंग। पीछे वाला जो इसकी साइड होगी उसको डोर्सल साइड कहेंगे, और इस पर सोर टेस्ट प्रेजेंट है कि टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है। सॉल्टी टेस्ट इज फेल्ट बाय द एजेस। जुबान के दोनों तरफ के एजेस सॉल्टिश टेस्ट के लिए स्पेसिफाइड हैं। एंड द बिटर वन इज फेल्ट बाय द बेस ऑफ द टंग। बिटर टेस्ट हमें जुबान के एंड पे फील होगा। सो आप इनकी हर टेस्ट बर्ड की स्पेसिफिक लोकेशन आप याद रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी और जनरल नॉलेज के लिए भी। अब आते हैं अपने सेकेंड पार्ट की तरफ, जो है फंक्शंस ऑफ टंग। तो जुबान का सबसे पहला फंक्शन है हेल्प इन डाइजेशन। फंक्शंस को मेमोराइज करने का या उनको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसके छोटे छोटे से बुलेट पॉइंट्स बना लें, हर पॉइंट की एक स्पेसिफिक हेडिंग इससे दे लें। जैसे कि नंबर 1 हेडिंग इसकी होगी हेल्प इन डाइजेशन। अब कैसे हेल्प करती है? मैस्टिकेशन के थ्रू, यानी जुबान मैस्टिकेट करती है, उसको च्यू करती है, ग्राइंड करती है। जो भी फूड जुबान में माउथ में इंटर होता है, जो भी हम फूड इंटेक करते हैं, जुबान उस फूड को सलाइवा की मदद से उसकी डाइजेशन स्टार्ट कर देती है, उसकी लुब्रिकेशन करती है और उसकी मैस्टिकेशन यानी ग्राइंडिंग और च्यूइंग का काम करती है। सेकेंड फंक्शन जो जुबान परफॉर्म करती है इज द डिटेक्शन ऑफ टेस्ट। ये इसकी हेडिंग होगी। अब डिटेक्शन ऑफ टेस्ट कैसे होगा? डिटेक्शन ऑफ टेस्ट और फ्लेवर विद द हेल्प ऑफ टेस्ट बर्ड्स। और टेस्ट बर्ड्स आप देख भी चुके हैं कि कैसे प्रेजेंट है और किस जगह पर प्रेजेंट है। जुबान का थर्ड फंक्शन है, और थर्ड फंक्शन की हेडिंग है क्लीनिंग ऑफ टीथ। हम बहुत से फूड पार्टिकल्स जो हमारे माउथ में रह जाते हैं उनको विद द हेल्प ऑफ टंग क्लीन आउट करते हैं। और जुबान का फोर्थ फंक्शन ये है कि ये अपने मूवमेंट के थ्रू वॉइस रिकग्निशन में और स्पीच में हेल्प आउट करती है। और ये किसके थ्रू होता है? बाय द मूवमेंट ऑफ टंग। तो ये तो थे वो तमाम फंक्शन जो जुबान परफॉर्म करती है।
अब आते हैं अपने होमवर्क की तरफ। सबसे पहले होमवर्क हम करेंगे अपने टेस्ट एक्सरसाइज 1 से। टेस्ट एक्सरसाइज 1 का कुछ पार्ट आपको मिलेगा पेज 24 पे और इसका रिमेनिंग पार्ट आप पेज 25 पे आपको मिलेगा। टेस्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट है फिल द सर्कल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट आपको दी गई है जिसे आपने केयरफुली रीड आउट करना है और फिर उसके बाद उसके ऑप्शंस को केयरफुली रीड करना है। स्टेटमेंट का एनालिसिस करने के बाद आपने 4 ऑप्शंस में से राइट आंसर यानी जो कि करेक्ट वन होगा उसके सर्कल को फिल कर देना है। सबसे पहले देखते हैं कि हम कौन सा MCQ हमारे आज के टॉपिक से रेलिवेंट है, हमारे आज के लेक्चर से था। नंबर 2, द मस्कुलर ऑर्गन इज स्किन, टंग, आई और ईयर। 4 ऑर्गन्स आपको बताए गए हैं। आपने बताना है कि इसमें से कौन सा मस्कुलर ऑर्गन है और मस्कुलर ऑर्गन हम की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि वो ऑर्गन है जिसकी मूवमेंट में या जिसके फंक्शन में बोन सपोर्ट नहीं करता या स्केलेटन का कोई भी पार्ट सपोर्ट नहीं करता, मस्कुलर ऑर्गन कहलाता है। आप राइट आंसर को फाइंड आउट करेंगे और उसका सर्कल फिल करेंगे। अब आते हैं अपने पार्ट बी की तरफ। इसका क्वेश्चन 3 आप सॉल्व करेंगे। व्हाट इज म्यूकोजा, राइट इट्स फंक्शन। म्यूकोजा क्या है और इसका फंक्शन क्या है ये हम पढ़ भी चुके हैं और देख भी चुके हैं। आप इजीली इसके आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज का पार्ट ए भी यही है कि फाइंड द करेक्ट आंसर, फिल द सर्कल ऑफ द करेक्ट आंसर अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट के अगेंस्ट ऑप्शंस बताए गए हैं। स्टेटमेंट को केयरफुली एनालाइज करने के बाद आपने राइट आंसर के ऑप्शन के सर्कल को फिल करना है। और ये टेस्ट रिव्यू एक्सरसाइज आपको मिलेगी पेज 29 पे। इसमें से क्वेश्चन 3 आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे एंड ऑल दैट। क्वेश्चन 3 है ऑर्गन दैट हेल्प्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम इज। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा ऑर्गन हमें हेल्प आउट करता है वो आपने आइडेंटिफाई करना है। क्या डाइजेशन स्किन के थ्रू होती है, टंग उसमें कोई रोल प्ले करता है, आई प्ले करता है या एयर प्ले करता है। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। नंबर 4 इज the rough texture of tongue is due to the presence of tiny bumps. What is the scientific term used for those bumps? As you are studying the science, so you are expecting to use the scientific terminology. So the scientific terminology specified for the tiny bumps present on the tongue is mucosa, papilla, taste buds or dorsum. Fill the circle of the right answer. अगर आपने अपना लेक्चर गौर से इसको सुना है तो आप इजीली राइट आंसर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द पार्ट सी। पार्ट सी है कि आंसर दिस क्वेश्चंस इन डिटेल। अब आपने अपने आंसर को इन डिटेल डिस्कस करना है। अब जब इन डिटेल आंसरिंग की बात करते हैं तो इन डिटेल आंसरिंग में आप तमाम बुलेट पॉइंट्स भी लिखेंगे जो भी उसके आंसर की डिमांड है, प्लस इसमें आप डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के थ्रू आप अपने आंसर को, अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से और ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। पार्ट सी में से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ टंग। हमने टंग का स्ट्रक्चर भी पढ़ा और उसके फंक्शंस भी, 4 फंक्शंस हमने उसके डिस्कस किए थे टंग के। आप उन सबको अपने आंसर में बयान करेंगे। नेक्स्ट कम्स द समर पैक। समर पैक में से आप सॉल्व करेंगे एक्टिविटी 2.2। अब एक्टिविटी 2.2 सॉल्व करने से पहले आप इसके 2 क्वेश्चन, यानी जो पिंक लेबल्ड सेक्शन है जिसमें आपने बताना है कि वेयर हैज दिस SLO बीन एड्रेस्ड इन द बुक और व्हाई डू वी स्टडी दिस SLO, जो कि इसके पिछले सफ़े पे है, प्रीवियस पेज पे है, आप उसे भी सॉल्व करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप आएंगे एक्टिविटी 2.2 पे। लेबल द स्टेट टेस्ट फेल्ट ऑन शेडेड एरिया ऑफ टंग। आपको 4 टंग्स दिखाई गई हैं और हर टंग का एक स्पेसिफाइड एरिया लेबल शेडेड है। आप बताएंगे कि उस स्पेसिफाइड एरिया पे किस किस्म के टेस्ट को डिटेक्ट किया जाता है। आप उन तमाम टेस्ट के हर टंग के नीचे रिस्पेक्टिव टेस्ट का नाम लिखेंगे। ये एक्टिविटी सॉल्व करने के बाद यू विल ओपन द MCQ सेक्शन फ्रॉम योर समर पैक and find out the question which is relevant to your lecture. And from these questions, question number 3 is your target question that you will have to solve. Number 3 question is wet pink tissues covering the tongue are. हमने पढ़ा था कि टंग की surface यानी dorsum is made up of some specific kind of tissues. अब ये specific kind of tissues कौन से हैं? क्या वो mucosa हैं,
पेपिला है, डॉर्सन है या टेस्ट बर्ड्स हैं। सो आप राइट आंसर फाइंड करेंगे और फिर उसकी रीजन भी बताएंगे कि आपने वो स्पेसिफिक आंसर क्यों चूज किया, क्या वजह थी कि आपने वही वाला आंसर चूज किया। नेक्स्ट पेज पे आइए, समर पैक के एमसीक्यू सेक्शन है अभी तक। इसमें नंबर 4 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, नंबर 5 सॉल्व करेंगे, 6 सॉल्व करेंगे। नंबर 4 क्वेश्चन इज द फीलिंग ऑफ हॉटनेस ऑफ टी एंड कोल्डनेस ऑफ आइस इज डिटेक्टेड बाय फ्रेनुलम, पेपिला, म्यूकोजा और डॉर्सम। ये तमाम टर्म्स टंग से रिलेटेड है, स्ट्रक्चर ऑफ टंग से रिलेटेड है। तो इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो हॉटनेस को और कोल्डनेस को डिटेक्ट करता है, आपने उसको मार्क करना है और उसकी रीजन भी बतानी है कि ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन नंबर 5। टंग स्टेज फिक्स्ड इन ओरल कैविटी एंड डू नॉट लीव द माउथ बिकॉज। अब टंग के बारे में हमने पढ़ा था कि अगरचे वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी उसमें कोई बोन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसका स्पोर्टिव स्ट्रक्चर स्केलेटन में से मौजूद है। टंग स्केलेटन में से एक स्पेसिफिक बोन के साथ अटैच है। आपने उसको फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो टंग को सपोर्ट करता है। क्या वो हाइड बोन है? इट इज अ मसल। टीथ प्रोटेक्ट्स द टंग। इट्स अ स्पेसिफिक टू पैलेट। पैलेट हमारे माउथ की अपर सरफेस है। राइट आंसर फाइंड करने के बाद आप उसकी रीजन भी बताएंगे। देन कम्स द नंबर 6 MCQ। टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन फ्रेनुलम, पेपिला, डॉर्सम या म्यूकोजा। 4 टर्मिनोलॉजीज आपको 4 स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं। इनमें से आपने फाइंड आउट करना है कि किस स्ट्रक्चर पे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट हैं और फिर आप उसकी रीजन भी बताएंगे कि व्हाई डिड यू चूज दिस ऑप्शन। देन कम्स द क्वेश्चन आंसर सेक्शन फ्रॉम द समर पैक। इसमें से आप क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे। राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ टंग। हमने टंग के 4 फंक्शंस डिस्कस किए थे, उनमें से कोई से भी 2 फंक्शंस कोशिश कीजिए कि मेजर फंक्शंस टंग के बताएं, डिस्कस किए जाए। यहाँ हमने अपना SLO अचीव कर लिया है। थैंक यू वेरी मच।